Okay. So in numbers, the first thing that we have is classification of numbers, divisibility rules, HCF, LCM, and so these are the things that we are going to have. Okay, so let's say we try to classify numbers. We'll quickly go through all this. So all the numbers that we have on our planet can broadly be classified what we call as a complex numbers. Right? Complex numbers are the numbers in the form of a plus iota b. So what is this iota? Iota is basically an imaginary number. So where do we get this imaginary number from? You see, we know 2 into 2 is 4. So when you do under root of 4, you end up getting a 2. We also know minus 2 into minus 2 is 4. So when you do under root of 4, you may also say minus 2. And therefore, whenever we say under root of 4, we say plus minus 2. Now, if something into something is a positive number, it could be both positive into positive, it could be both negative into negative. But if I'm looking at some number multiplied by same number as minus 4, then I'm in trouble because I do not get such number such that some x into some x is equal to minus 4. So what do? You take a multiplication, you say minus 1 into 4. So why I'm doing this minus 1 into 4? Because I know I can write this as 2 into 2 is equal to minus 1 into 4. The problem is that this 2 into 2 is sufficient for this 4. And I have nothing that some number into some number should give me a minus 1. So I'm looking for a number such that the number multiplied by itself is equal to minus 1. Now there is no real number which is possible to give such a kind of property that when it multiplies by itself, you end up getting a minus 1. Therefore, since does not exist any number, you simply imagine a number called I. So imaginary number. So you say I, let me imagine. So I say I, such that if I multiply I into I, so that becomes I square becomes minus 1, or I is equal to under root of minus 1. And therefore, the concept of imaginary number comes into picture. If you multiply I on both the sides, we can say I cube can be taken as minus I. If you square on both the sides, you can get I power 4 is equal to 1. So this is the basic values and meaning of iota or imaginary number. Are you understanding now? If in any case this a is 0, we are only talking of this number, let us say 2 iota, then this is known as, if a is 0, then this portion will be known as purely imaginary, right? If b is equal to 0, then this part will be purely a real number. So what do you mean by real number? Real number is something which exists. And where does it exist? It exists on a straight line called number line that we have been studying. Now, if there is a position for a number on the number line, then we will say that the number is a real number. If there does not exist any number which resides on a number line, we call it as a imaginary number. So for all practical purposes, all the questions that we are going to work upon is by and large on the concept of a real number. So real numbers are something which really exist. Now, all the numbers which are real can broadly be classified as two portions. One kind of numbers, what we call as a rational number, and the other kind is what is called as irrational number. So what is an irrational number and what is irrational number? Now, if you look at general meaning, English dictionary meaning of rational basically means being logical. He's a very rational person. He's a very logical person. That is how you define rational. Now, if you look, certain numbers which are rational could be something, let's say 2. It's just a number 2. That's it. No big deal. You may have a number like 1 by 2, which is nothing but 0.5. Right. You may have a number like 1 by 4, which is 0.25. But you may also have a number like 1 by 3, which is 0.33333. So on. So you may want to write 3.0 bar. Now, if you look at all these kinds of numbers, you see 2 can actually be written as 2 by 1. And that's it. It ends. So the numbers, if you see here, is either terminating type or it is repeating type. So what is terminating type? Terminating type is a number which ends. For example, 1 by 2 ends 0.5.
1 by 4 ends 0.25, 1 by 5 will end 0.2, 1 by 8 will end 0.125. So it is ending. But there are numbers which are never ending, which keeps on repeating. Let's say value of 1 by 3 is 0.333333. Therefore, we say bar. Let's say value of 1 by 6, 0.166666, so on till infinity. So this, it's repeating. Now, that means if you look at all the numbers, they are broadly two types. Either they are terminating or they are repeating. Either they are terminating or they are repeating. In both the cases, the numbers seem to be logical in the sense या तो वो end हो जाएगा और या तो वो repeat होगा. समझ में आ रहा है? इसलिए इस टाइप के नंबर्स को हम rational numbers बोलते हैं. Although there is a formal definition of a rational number which says any number in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q belong to integers is defined as a rational number. कोई भी नंबर जो है वो p by q की फॉर्म में हो where q is not equal to 0 can be defined as rational number. Such numbers will have a logical behavior and either the number will be terminating type or the number will be repeating type. समझ में आ रही बात? अगर मान लेते हैं मैंने 4 बोला, 4 is a natural number. Is 4 a rational number? Yes, because 4 can be written as 4 by 1. This is p, this is q, and p and q belong to integers. तो ये integer word एक और नया आ गया. Integer word कहाँ से आता है? ये English word आता है integral से. Integral का मतलब होता है complete which is not broken, which cannot be broken. We have been listening to this word in news. Kashmir is an integral part of India. That is what we say. तो इंटीग्रल यानी अखंड भाग, जिसको हमने तोड़ा नहीं है, पूरा नंबर. तो जो खड़े नंबर होते हैं, पूरे नंबर होते हैं, उसको हम इंटीग्रल बोलते हैं. जैसे 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स हैं. क्या 1/2 इंटीजर है? नहीं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का मतलब टुकड़ा. अभी हम उसको भी देखेंगे, बट फिलहाल हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं. एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is defined as rational number. Now the problem here is why cannot be q 0? Because any number divided by 0 is undefined. 0 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 0 को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी नहीं होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर करोगे तो हमेशा 0 आएगा. किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वही नंबर आ जाएगा. किसी नंबर में 0 माइनस करोगे तो वही नंबर आ जाएगा. किसी भी नंबर में 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा. किसी भी नंबर में पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा. These are certain basic characteristics of 0. इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है कि किसी नंबर में ऐड करोगे तो सही नंबर आ जाएगा. तो बेसिक हमारा फंडामेंटल क्या है? Any number in the form of p by q where q is not equal to 0 is defined as my rational number. चलेगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? Okay, now if this is a rational number which is in the form of p by q, q not equal to 0 is rational. So all these rational numbers broadly अगर हम बात करें तो दो तरीके से हो सकता है. क्या क्या हो सकता है? एक तो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीजर, और दूसरा क्या था? फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस यानी टुकड़ा. फ्रैक्शंस में भी 3 तरह के होते हैं. एक होता है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होगा मिक्स्ड. प्रॉपर का मतलब सही मायने में टुकड़ा. फॉर एग्जांपल 3/4 ये प्रॉपर है. प्रॉपर का मतलब है टुकड़ा, मतलब खुद से छोटा. खुद से छोटा यानी 1 से छोटा. कभी भी जब न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन डिनोमिनेटर होगी तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी और हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे. अब लेकिन मान लो मैंने उल्टा कर दिया 4/3, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं क्योंकि ये सही मायने में टुकड़ा नहीं है. क्योंकि 4/3 की वैल्यू 1.33 होती है, तो टुकड़ा तो खुद से छोटा होना चाहिए, तो खुद से बड़ा हो गया. इसलिए हमने इसको क्या बोला? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. यानी जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होगी तो वो क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. जैसे 4/3 को 1 + 1/3 लिखा जा सकता है, which can further be simply written as 1/3. हम प्लस वैल्यू बीच में नहीं डालते हैं. इस चीज को मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें दो चीजें मिली हुई हैं. क्या मिला हुआ है? इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट. क्या क्या मिला हुआ है? इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट मिला हुआ है. ये बात समझ में आती है? तो फिर हम वापिस आ जाते हैं. हमारा इंटीजर पार्ट क्या है? इंटीजर यानी इंटीग्रल जो कि नहीं टूटता. वो सारे की सारी चीजें एक नंबर लाइन पे डिसाइड करती हैं. अब अभी हम उसके बारे में समझते हैं. बीच में 0 आएगा, राइट में 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ
-1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा। अगर हाफ चाहिए तो इसके बीच में आ जाएगा, 3.5 चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये नंबर लाइन है, सारे नंबर्स इसके ऊपर रिसाइड करते हैं, और ये जितने भी नंबर जो इसके ऊपर रिसाइड करते हैं वो मेरे क्या नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब हम एक बार थोड़ा सा और राइट साइड में भी आ जाएं। हमने यहाँ पे देखा कि जो मेरे नंबर्स हैं वो दो तरीके से थे, टर्मिनेटिंग टाइप या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, और दोनों का बिहेवियर लॉजिकल था, तो हमने दोनों का नाम रैशनल नंबर दे दिया। तो मुझे ये बताइए, अगर इस टाइप के नंबर्स रैशनल हैं तो किस टाइप के नंबर इरैशनल हो जाएंगे? नंबर्स विच आर जो नाइदर टर्मिनेट हो रहे हो और ना रिपीट। क्या कोई ऐसे नंबर होते हैं? √3, √2, √2 की वैल्यू क्या है? रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है? और भी लिख देता हूं, कहां तक लिखना है बताओ? हैं? अरे नंबर बना रहा हूं तेरे आगे। ऐसे ही है, ऐसे फर्जी है। यहां तक तो ठीक है। ऐसा फीलिंग आया ना मास्टर जी को आता है कुछ, नहीं तो क्या है? Anyway, so 1.41428 is right, and beyond that ऐसे ही है। The only point I am trying to make, it is neither terminating nor repeating. Similarly, √3, √7, √5, all these values are neither terminating nor repeating. These irrational numbers are known as roots of polynomials. क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक तरह के तो ये नंबर होते हैं। कुछ नंबर मैथ्स में आते हैं जो बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेफिनेशन आते हैं, जिसका आपने नाम लिया अभी पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? वैसे 22/7 होती है, लेकिन 22/7 रैशनल है इरैशनल है? रैशनल। और पाई तो इक्वल टू कैसे हुआ? तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7. Practically it is an approximation, because 22/7 is 3.1428, which is, once again if you do it, divide it, it will repeat. It's a repeating decimal. लेकिन हम approximate value मान लेते हैं, तो 22/7 is a rational number. Sorry, 22/7 is a rational number. Pi is a rational number. That is why if you look at the books, they will say take pi is equal to 22/7. Nobody says pi is equal to 22/7. So इसलिए specifically मैंने take pi is equal to 20, यानी approximate value है। उसी तरीके से e आता है एक्सपोनेंट, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 लेते हैं। ये सारे जो नंबर्स होते हैं इनको हम ट्रांसीडेंटल नंबर्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल नंबर्स। दे एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेफिनेशन। क्योंकि हमने उसको ऐसा डिफाइन कर दिया कि इसका नाम है, तो हमने नामकरण कर दिया, तो वो ट्रांसीडेंटल नंबर्स हमारे बन गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम्स ना? ठीक है, देन लेट्स ओके। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि क्या ये इररेशनल नंबर्स रियल हैं? अगर ये रियल हैं तो इनका नंबर, इनकी जगह होनी चाहिए यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है, मान लो √2 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो तो 1.4128 इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये है भी या नहीं है? पक्का? कौन से वाले बचपन में? अच्छा, 10th वाले बचपन में। ओके, पैराबोला। नाउ ऑब्वियसली √2 का जो है नंबर है वो बिल्कुल ही टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, तो यहाँ ज्योमेट्री काम में आती है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा। So there was a mathematician, Pythagoras. He gave us one of this formula that if there is a right angled triangle, then hypotenuse square is equal to height square plus base का। ये याद है? तो मान लेते हैं ये हमारा 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट है, और हम इस पे एक परपेंडिकुलर बना देते हैं
ये भी 1 यूनिट का। इसको बनाया जा सकता है, मेजर कर सकते हैं फीते से एग्जैक्टली। ये 90 डिग्री कैन बी मेड यूजिंग कंपास, डी होता था याद है, उससे भी बना सकते थे, कंपास से भी। तो मान ले एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस लेंथ मस्ट बी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, सो दिस विल बिकम √2, सो दिस लेंथ शुड बी एग्जैक्ट √2। अब अगर अपन कंपास लेके मेजर करें और एक सर्कल बनाएं तो ये सर्कल ऐसे बनेगा, सर्कल में रेडियस बिल्कुल सेम होता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, तो देयरफॉर इट मींस द नंबर √2 रियली एग्जिस्ट ऑन ए नंबर लाइन। इससे ही पता चलता है कि ये रियल नंबर है। So despite the fact that we do not know the exact value, we are still able to figure out the position of that particular value on the number line. Similarly, we will be able to figure out √5, √7, हम सारी values निकाल सकते हैं। इसीलिए मेरा क्या नंबर है, ये रियल नंबर है। Despite the fact that it is irrational number, we call it as a real number. मैं ये कह रहा हूँ कि √2 जो है उसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो √2 अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें √2 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि इसको निकालने का ये तरीका, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और 1 सेंटीमीटर का ये लाइन खींच लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इसकी लंबी लाइन कितनी, ये तो 90 डिग्री है, इसकी लंबाई कितनी होगी? AC 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2 स्क्वायर तो AC स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 का 2 बचेगा, AC स्क्वायर इज 2, तो AC की वैल्यू क्या हो गई? इसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर सकते, जब ये सिंगल के अंदर आ जाएगा तभी कैंसिल कर सकते हैं, अलग अलग नहीं। तो 2 बन जाएगा, इसकी लेंथ, इसको रेडियस मान के आर्क बनाएंगे, ये √2 है। ओके ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी विल टॉक ऑफ सम इंटीजर्स। जो हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम उनका थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करेंगे इंटीजर्स का। तो मान लेते हैं मेरे इंटीजर्स थे, बीच में सेंट्रल वैल्यू 0 होती है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव, कहां से कहां तक होगा पॉजिटिव इंटीजर? 1 से इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर मैं बोलता हूं मुझे चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं है, अगर कोई नंबर नेगेटिव नहीं है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव है? समझ में आ रहा है? अगर मैंने कहा नेगेटिव नहीं है तो क्या पॉजिटिव है? ना, ये गलत बात। अगर मैंने कहा ये नंबर पॉजिटिव नहीं है तो क्या नेगेटिव है? ना। क्यों? पंगा किसका? 0 का, बिकॉज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर मैं नॉन नेगेटिव बोलता हूं तो नेगेटिव नहीं है तो ये खत्म हो जाता है, तो क्या बचता है? ये सारे इंटीजर्स बचते हैं 0 से लेके ये सारा का सारा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं होल नंबर्स। ये बात ध्यान रखना है, नॉन नेगेटिव डज नॉट मीन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव डज नॉट मीन नेगेटिव, बिकॉज यू विल हैव टू टेक कंसीडरेशन ऑफ 0। आ रही बात समझ में? अब तो नेगेटिव नंबर, अगर मैंने नेगेटिव इंटीजर्स बोला तो -1 से -इन्फिनिटी जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर बोला तो 1 से इन्फिनिटी जाएगा।
नॉन नेगेटिव बोला तो 0 से इंफिनिटी जाएगा, नॉन पॉजिटिव बोला तो 0 से माइनस इंफिनिटी जाएगा। ठीक है, इसमें फर्दर जो डिवीजन होता है वो होता है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं, जो भी इंटीजर 2 से डिविजिबल है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, और जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसको हम ऑड नंबर। तो 0 जनरली क्या कंसिडर करेंगे अब हम, इवन नंबर। 0 इज अ इवन नंबर उस सेंस में। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर नेचुरल नंबर को स्टडी करते हैं। जो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं हम फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरीके से। कैसे? एक होता है प्राइम नंबर, और दूसरा होता है कॉम्पोजिट नंबर्स। एक नंबर हो गया प्राइम और दूसरा हो गया कॉम्पोजिट। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड itself only. And what is the composite number? Composite का मतलब composition, mixture of what? Mixture of prime numbers. But जितने भी नंबर है वो प्राइम और कॉम्पोजिट में डिवाइड नहीं होते। एक स्पेशल नंबर है 1. 1 is neither prime nor composite. ये इंपॉर्टेंट बात है। 1 is neither prime nor composite itself. All prime numbers are divisible by 1 and self. So the prime numbers happen to be, let us say, 2, 3, 5, 7. हमारी बात समझ में? ये सारे के सारे मेरे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अगर इनका मिक्सचर है, मान लो मैंने 6 ले लिया, तो 6 is a mixture of prime 2 and 3. 8 is a composite number which is a mixture of 2 into 2 into 2. आ रही बात समझ में? नहीं नहीं नहीं, कॉम्पोजिट इवन कोई जरूरी नहीं है। 21 है मान ले, 21 में 7 है और 3 है, 3 और 7 है, इनको मिला के बना है। जब प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपोजिट बन जाता है। यानी एक्चुअली सारे नंबर या तो प्राइम है या मिक्सचर ऑफ प्राइम है, एक्सेप्ट फॉर 1 बिकॉज़ 1 इज डिफाइंड एज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, नाउ if you understand this, the smallest prime number happens to be 2 and 2 is the only known even prime number. उसके अलावा दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे ऑड होंगे। समझ में आ रहा है? 2 is the only even prime number, all other and it is also the smallest prime number, right? 2 happens to be the smallest prime number and it also happens to be the smallest even prime number. All other prime numbers will be odd. यहाँ तक बात समझ में आती है? Now all the prime numbers that we have, I mean barring 2 and 3, when divided by 6 will give me a remainder of 5 or it will give me a remainder of 1. In other words, all the prime numbers that we have can actually be written in the form of 6k plus 1, or it can be written in the form of 6k minus 1. This does not mean that any number which can be written in the form of 6k plus 1 or minus 1 is a prime number. ये बात सही नहीं है, लेकिन अगर वो prime number है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। For example, if you talk of 5 is a prime number. So 5 is basically 6 into 1 minus 1. 7 is a prime number which is 6 into 1 plus 1. 11 is a prime number which is 6 into 2 minus 1. 13 is a prime number which is 6 into 2 plus 1. 17 is a prime number which is 6 into 3 minus 1. 19 is a prime number 6 into 3 plus 1. Right? 23 is a prime number which is 6 into 3 minus 1. But if you look at 6 into 4. If you look 6 into 4 plus 1, this happens to be 25, which is not a prime number, but it can be written in the form of 6k plus 1. इसका मतलब है you cannot use the divisibility rule of 6 to check whether the number is a prime. It may give you wrong results. But if the number is prime and you are dividing it by 6, you will get a remainder of 1 or minus 1. So what do you mean by minus 1? Minus 1 का मतलब होता है plus 5. वो समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। Minus 1 का मतलब plus 5 कैसे होता है जब हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं। Right? So all the prime numbers can be written in the form of 6k plus 1 or 6k minus 1. Right? Something more about prime numbers. There are something known as a twin prime numbers. So twin prime numbers are numbers which differ by 2. For example, 3 and 5 are twin primes. 5 and 7 are twin primes. 11 and 13 are twin primes. Yani the difference between any two prime numbers, if 2, is known as twin primes. Then there was a question, how many triple primes exist? So what is a triple prime? So this is what we call as a twin prime. Then you have triple prime. So triple prime are 3 prime numbers which differ by 2. So 3, 5, 7 is known as a triple prime. Do you know any other triple primes?
No, there is no other triple prime. This is the only. उसके बाद 3 prime numbers which differ by 2. Three prime numbers which differ by 2 is known as triple prime. Now, what happens if you go move ahead in the number systems? The frequency of prime numbers keeps on decreasing. जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है, जो प्राइम नंबर्स की अवेलेबिलिटी है वो हमारे पास कम होती जाती है, तो इसलिए ट्रिपल प्राइम आगे जाके नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी प्राइम नंबर्स की। और कुछ मैंने छोड़ दिया हो प्राइम में? नहीं। 100 में 25 प्राइम होते हैं, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम होते हैं, वो याद कर लेना बस। वही क्वेश्चन ये हो सकता है, how do you identify how many primes are there? Say, I mean, whether a given number is a prime or not. Let's say I take a number like 271 and I ask you if this 271 is a prime or not. So how do you identify this? So to be able to find out whether a number is a prime or not, we end up doing what we call as a divisibility rules. Right? We divide a number by 2, 3, 4, 5, 6, 7. We keep on checking this divisibility rules to figure out whether the number is a prime or not. But the question is, how far do we check? Say for example, I have 271 and I need to check whether the number is a prime or not. So do I check 2, 3, 4, 5? कहाँ तक लेके जाऊँ? So there's a method that you figure out approximate under root of this value. So let's say, you know, had it 15 square is 225, right? 16 square is 256. Let's say ये 16 इसकी ये जो वैल्यू है 16 स्क्वायर होता तो 256 होता और 17 होता तो 289 होता। ये 16 और 17 के बीच में इसका आंसर आएगा, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 256 बनेगा, which is less than 271, which is more than 289। ये इसी तरीके से हम अंदाजा लगाते हैं कि इसकी अप्रॉक्सीमेट अंडर रूट वैल्यू क्या है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट अंडर रूट वैल्यू 16 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए। तो आपको इसका डिविजिबिलिटी रूल 16 तक लगा के देखना है। अगर 16 तक आपको इसका फैक्टर मिल गया तो ठीक है, आगे नहीं मिलेगा आपको। कहां तक डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है? 16 तक, उससे ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्टर हुआ तो होगा और फैक्टर नहीं मिला तो नहीं मिलेगा आगे जाके। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आती है? इसके बाद मुझे आपको सिखाना है व्हाट वी कॉल्ड एज डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है? तो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लेते हैं, मान लो किस चीज, क्या चीज का क्वेश्चन क्या था? तू बता है या नहीं है? कैसे बता? वो तो ठीक है, फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे ना। कहाँ तक चेक करने पड़ेंगे? 16, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। किससे? पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6। कहाँ तक चेक करेगा? 16 तक। अभी डिविजिबिलिटी रूल तो आते नहीं ना, अभी वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जब वो हो जाएंगे फिर हम चेक करके देख लेंगे। Now, if I write this number 2, 3, 7, 4, 8, 4, is this number divisible by 2? How do you know? divide तो किया नहीं आपने, because the last digit is divisible by, ठीक है, because last, हेलो, हाँ नमस्ते, बस में 5 बजे क्लास है, उसके बाद यहीं पे नीचे ही रखना सब शब्द, ऊपर मत करना। So since the last digit is divisible by 4, I mean last digit is divisible by 2, I can say complete number is divisible by 2. This fact that the last digit is divisible by 2, so the complete number is divisible by 2, tells us, I mean this is what you called as divisibility rule. You don't have to divide it, you just have to know this, that if only one digit is divisible, we can be sure that the entire number is divisible. So this happens to be divisibility rule of 2. What about divisibility rule of 4?
If the last two digit is divisible by 4, we can claim that the entire number is divisible by 4. Why? Because 4 can be written as 2 square. What is the divisibility rule of 8? If the last three digit is divisible by 8, I can say complete number is divisible by 8. What about 16? If the last four digit is divisible by 16. What about 32? If the last five digit is divisible by what? 32, then the complete number will be divisible by 32. What about 64? Last. That is the pattern. पल्ले पढ़ रही है बात? What is the divisibility rule of 3? If the sum of the digits are divisible by 3, we can claim that the entire number is divisible by 3. What about 9? If sum of the digit is divisible by 9, I can say the complete number is divisible by 9. What about divisibility rule of 4? तो कर लिया 5. If the last digit is divisible by 5, I can say complete number is divisible by 5. What is the divisibility rule of 25? If the last two digit is divisible by 25, I can claim that the entire number is divisible by 25. What about divisibility rule of 125? Last. What is the divisibility rule of 6? If a number is divisible by 2 and 3, if the number is divisible by 2 and also 3, then we can say it is divisible by 6. What is the divisibility rule of 7? Now I am going to teach you how do we find out divisibility rule of any prime number and any composite number. But for the time being, I am only trying to teach you all the things that is given in our books. So for 3 numbers which are less than 3 digits, you don't really use divisibility rule of 7. But if there are larger numbers, for example, 4, 3, 7, 8, 9, 2, 1, 5, 6, 3. And I'm asking you whether this number is divisible by 7 or not. So what do? I make sets of 3. मान लेते हैं मैंने एक सेट ये बनाया 3 डिजिट का, फिर एक 3 का ये बनाया, तो ये बच गया, एक सेकंड सेट बच गया. ये चूंकि नहीं बना तो मैं इसको 004 कर लेता हूँ. समझ में आ रही बात? मैंने 3 के क्या बनाए? सेट बना लिए. उसके बाद मान लो मैंने पहला, तीसरा और यहाँ पे एक सेट बनता है तो उसको भी ले लेता हूँ. उसको ऐड करना होता है. किसको? पहला, तीसरा, पांचवा. तो पहला सेट बनेगा 563, तीसरा बनेगा 378. इसको ऐड कर लो तो 8 और 3 11, हासिल 1 14, कैरी 1, 8 और 1 9, 941. अब मेरे पास बच गया ये दोनों. इन दोनों को 921 प्लस 4 क्या 925, तो बनेगा 925. उसको माइनस करो तो 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 2 गया 1. Is 16 divisible by 7? Therefore this number is not divisible by 7. ये रूल 7 का है. एग्जैक्टली सेम रूल 13 का है. सारे काम करने यहाँ पे चेक करना है क्या 16 13 से डिवाइड हो रहा है. नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नंबर 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा. सो द रूल ऑफ 7 and 13 इज यू टेक फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यू टेक 3 का सेट्स बनाओ. पहला, तीसरा, पांचवा सेट जोड़ो, दूसरा, चौथा, छठा सेट जोड़ो. 2 अलग अलग सेट बनेंगे. दोनों का डिफरेंस निकालो. अगर दोनों का डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा. सिमिलरली यही काम अगर 13 के लिए भी करना है. 3 के सेट बनाने हैं. पहला, तीसरा, पांचवा लेना है, दूसरा, चौथा, छठा लेना है. दोनों को ऐड करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है. If the difference is divisible by 13, our complete number is divisible by 13, as the number is not divisible by 13. क्या 3 वाले का डिवाइड करके 3 से ज्यादा हो 6 बना लेंगे उसको. हाँ जी, बन रही है बात यहाँ तक. अब हमने 7 8 कर लिया, 9 कर लिया. 10 का रूल क्या है लास्ट में? फिर 11 का रूल क्या है? जो काम हमने यहाँ 3 डिजिट के लिए मान लो 4 3 7 8 9 2 1 5 6 3 था. हमने 3 के सेट बनाए. अब इसमें 3 के सेट नहीं बनाने. पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9. 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21 माइनस
6 और 1 7 और 9 16 और 7 16 7 कितना हो जाएगा 23 23 और 4 27 21 minus 27 is -6. Is -6 divisible by 11? No, so this number is not divisible by 11. पहला तीसरा पांचवा पकड़ना है, ध्यान रखना उसी में से दूसरे वाले को घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर उसका डिफरेंस डिविजिबल बाय 7 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, नहीं तो किसी उस पे मैं तो समझ नहीं रहा हूं कि कैसे डिविजिबल है और -6 है। हाँ, अगर वहां -22 आ जाता है इसका मतलब डिविजिबल है। नहीं -6 सर, ये अच्छे से डिवाइडर -6 है और अब 6 से बोला जाए कि 6 से डिविजिबल है इसका आखिरी 6 से माइनस इसका पूरा कितना हम ऐड करेंगे 6 का तो अलग रूल है ना, ये तो 11 का रूल है। हाँ, सब स्पेसिफिक है, कोई चक्कर नहीं है, हर एक का अलग रूल है। समझ में आ रहा है? 12 का रूल क्या होता है? 3 और 4 होता है, 2 और 6 क्यों नहीं हो सकता भाई? उससे क्या है? इसका मैं तरीका बताता हूँ। तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो हमें उस कॉम्पोजिट नंबर को दो नंबर्स में तोड़ना होता है, दो फैक्टर्स में तोड़ना होता है, सच दैट बोथ द फैक्टर्स आर को-प्राइम टू ईच अदर। सो व्हाट डू यू मीन बाय को-प्राइम? को-प्राइम का मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है आपस में प्राइम। आपस में प्राइम का मतलब क्या है? दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 8 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 एंड 8। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो 8 को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। ऐसे ही 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 3 एंड 9। ये फैक्टर, इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है मेरा? और तो कुछ नहीं है। इसका मतलब 8 और 9 क्या है मेरे? ना तो 8 प्राइम है ना 9 प्राइम है, दोनों कॉम्पोजिट नंबर है। बोथ कॉम्पोजिट नंबर्स आर को-प्राइम। मान लेते हैं मेरे पास 27 है और 25 है, इसके फैक्टर बनेंगे 1 5 25, इसके फैक्टर बनेंगे 1 3 9 27। ये दोनों कंपोजिट है, वंस अगेन दूर दूर है, को-प्राइम। अब इंसिडेंटली क्या होता है मैं आपको बताऊं, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर होगा ना वो हमेशा को-प्राइम होगा। एक कैट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत पुरानी बात है। व्हाट इज द HCF ऑफ 2001 एंड 2002? क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है 2001 और 2002, तो इसका मतलब वो कैसे नंबर हुए? को-प्राइम हुए। को-प्राइम मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर को-प्राइम होगा, लेकिन सिर्फ वही को-प्राइम होंगे ये बात भी सच नहीं है। जैसे मैंने दिखाया 27 और 25 दूर दूर है तो कंसेक्यूटिव तो नहीं, वो भी को-प्राइम है। और अगर दो प्राइम नंबर है वो तो गारंटीड को-प्राइम होंगे ही होंगे। मान लो एक नंबर 5 है और एक नंबर मान लो और दूर लेके जा, एक 7 है 13 है, दोनों को-प्राइम है। एंड दोनों प्राइम है तो को-प्राइम तो होंगे ही होंगे। एक को-प्राइम, एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो चलेगा, दोनों प्राइम 100% चलेगा, एक दोनों कंपोजिट चलेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर तो पक्का ही को-प्राइम। समझ में आ रही बात? अगर हमें किसी भी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, क्या करना है? किसी भी कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो हमें उस नंबर को दो फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा, सच दैट द टू फैक्टर्स आर को-प्राइम टू ईच अदर। ये ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं अपने को 12 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो 2 और 6 नहीं चलेगा बिकॉज 2 और 6 में दो कॉमन फैक्टर है, तो उसमें 3 और 4 चलेगा बिकॉज 3 एंड 4 आर को-प्राइम। ऐसे ही 14 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, वो उसमें तो 2 और 7 होगा। 15 का डिविजिबिलिटी रूल होगा 3 एंड 5। 16 का हम कर चुके हैं, 17 का मैंने नहीं बताया अभी। 18 का डिविजिबिलिटी रूल होगा 6 एंड 3 हो सकता है, क्यों? 20 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 4 एंड 5। क्या 5 एंड क्या 2 एंड 10 होगा? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? मैं एक रैंडम क्वेश्चन बना रहा हूं, हो सकता है गलत भी हो जाए।
जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 2 3 A 7 4 B। Let us say what is the minimum value of A plus B such that this number is divisible by 88। 8 मतलब A और B की ऐसी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज द मिनिमम सम ऑफ व्हेन इट इज डिविजिबल, या व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, या हाउ मेनी वैल्यूज फॉर A एंड B एग्जिस्ट दैट सच दैट 2 3 A 8 4 B इज डिविजिबल बाय 88। इस तरह के से क्वेश्चन बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 88 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने पढ़ा नहीं है और ना आता, क्योंकि हमारी किताब में तो 20 तक है, तो हमें डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अब हमें स्प्लिट करना है, कैसे कैसे, क्या 2 and 44 कर सकते हैं, 8 4 and 22 नहीं करेंगे, सिर्फ 8 और, तो अगर ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, पहला तीसरा पांचवा, इनको ऐड करना है, 8 + B + 3 माइनस कौन कौन सा 4A and 2, 4 + 2 + A, this number should be divisible by 11, so this becomes 11 + B minus 6 minus A should be divisible by 11, तो 11 ये कितना बन जाएगा, 5 + B minus A should be divisible by 11। अब 11 से डिविजिबल होने वाला नंबर या तो 0 होगा, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, B - A को -5 बनाना पड़ेगा, लेकिन -5 तो बना नहीं सकते बिकॉज A भी न्यूमेरिक वैल्यू है और B भी न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 11 हो जाए, दूसरे वैल्यू, अगर ये वैल्यू 11 हो जाए तो भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। उस केस में B - A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6, तो इसका मतलब है B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A + 6। अब लेकिन हमें ये भी चाहिए 8 4B शुड बी डिविजिबल बाय 8, तभी तो 88 से डिवाइड होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 8 1 जा 8 उतारा, नहीं 4 नहीं जाने की 0 ऊपर उतारा B। अब B क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर B की वैल्यू 0 होती तो 40 हो जाता, डिवाइड हो जाता, और लेकिन B की वैल्यू 8 होती तो भी काम चल जाता, और तो कुछ हो नहीं सकता था। यानी B की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 8 होगी। अब B की वैल्यू 0 या 8, अब 0 बनाने के लिए A तो बनेगा नहीं, लेकिन B की वैल्यू 8 बनाएंगे तो A + 6 हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 2। यानी अगर हमने A की वैल्यू 2 ले ली और B की वैल्यू 8 ले ली तो ये वाला, ये एक ही पॉसिबल आ रहा है। कई वाले क्वेश्चन और भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इफ यू टेक B as 8 and A as 2, दिस नंबर विल बिकम डिविजिबल बाय 88। तो चूंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, मिनिमम मैक्सिमम सब यही है, यानी इसका सम कितना होना चाहिए, 10। और इस केस में तो हम डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पा रहे हैं A और B की। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है जी, और ना कुछ ऑल्टरनेट, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ। अब मैं आपको बताता हूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 and 19। ठीक है, पहले मैं एक बार समझा देता हूं जो हमें मेथड पता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी प्राइम नंबर का हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकाल सकते हैं। Let us say I am trying to find the divisibility rule of 17. I am just trying to take a number, let us say 3451, and I want to see whether this number is divisible by 17 or not. So what do? I get hold of this units place, ऐसे जो भी यूनिट्स प्लेस में आया उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। उसके बाद इसको मैंने माइनस किया, तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 34। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ठीक है, वरना वापस इसको 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 0 आ गया, 34 आ गया। Now we know 34 is divided by 17 and therefore 3451 is divisible by 17। मान लेते हैं हमारा कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 6834 है, 5 या और भी बड़ा अगर लेना चाहे तो 17 है। हम चाहते हैं कि ये चेक करना ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं है। हम यूनिट्स प्लेस पकड़ेंगे, ये 1 यहाँ, इससे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 11 में से 5 गया 6 बनेगा, 3 में से 3 गया 0 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ 8, यहाँ 6,
समझ में आता है तो ठीक है, वरना वापस यूनिट प्लेस पकड़ोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 बनेगा, माइनस करेंगे 0 बनेगा, 68 बनेगा। यहाँ तक हमें समझ में तो आ ही रहा है, बिकॉज 17 4 जा, अगर नहीं आता तो भी यहाँ 0 करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, माइनस करोगे 680 बनेगा, समझ नहीं आता वापस 0 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 बनेगा, 68 बनेगा। वी नो दैट 68 इज डिविजिबल बाय 17। अगर नहीं आ रहा तो वापस 5 को मल्टीप्लाई करोगे 40 तो माइनस में आ जाएगा, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो 68 आपको पता होना चाहिए दैट 68 इज डिविजिबल बाय 17। अब समझ में आ रहा है 17 का रूल क्या है, यूनिट प्लेस शो करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस करना है, बचे को नीचे ले जाना है। जब तक समझ में आ गया तो ठीक है, वरना वापस 5 से मल्टीप्लाई करना है, यू आर गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस। ये रिपीटेटिव टास्क है ना, तो इसलिए मैं फास्ट, इसमें तो कुछ नया तो था नहीं, वही घुमाना। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, समझ में आ गया 17। ऐसे ही हम 19 का भी कर सकते हैं। मान लेते हैं अभी देखो, इसमें हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया और हमने माइनस किया था। अगर हम 19 से करना चाहते हैं तो मान लेते हैं 3876 है, एंड आई वांट टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 19 और नॉट। तो मैं वंस अगेन सारा लॉजिक सेम है, 6 को पकड़ूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। इस बार आई विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से करूंगा तो आएगा 12। इस केस में मैं करूंगा ऐड करूंगा तो बनेगा 9 9 3। यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है, वरना वापस यूनिट प्लेस पकड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 57 57 इज डिविजिबल बाय 19, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वापस 7 पकड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा 19 19 इज डिविजिबल बाय 19, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 19। हाँ ठीक है, देखो अपने को यूनिट प्लेस पकड़ना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 आ गया। इस केस में इसको जोड़ना है अपन ने, ऐड, तो 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 3 399 हो गया। फिर यूनिट प्लेस पकड़ना है, 2 से ऐड करना है और इस तरीके से। अब प्रॉब्लम ये है 17 में 5 से गुणा हो रहा है, उसको माइनस कर रहे हैं। 19 में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस कर रहे हैं। अगर मैंने कहा जी कोई और, मान लो मैंने कहा जी 31 का रूल बताओ, 31 प्राइम नंबर है, उस केस में 3 से गुणा होगा और माइनस होगा। मैंने कहा जी मान लेते हैं कोई भी प्राइम नंबर बोलो जिसका चाहिए, मान लो 71 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, उस केस में आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस होगा। मान लो आपने कहा 13 का रूल चाहिए, मान लो इसी चीज से 13 का रूल चाहिए, तो ये आपका बनेगा 4 से मल्टीप्लाई होगा और ऐड हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई होगा और कहाँ ऐड होगा और कहाँ सब्ट्रैक्ट होगा? अगर ये समझ में आ जाए तो जितने भी प्राइम नंबर हैं हम सबके डिविजिबिलिटी रूल खुद निकाल लेंगे, 7 के भी, 11 के भी, 13 के भी, 23 का भी निकाल लेंगे। इस केस में मान लो मेरे को 23 का समझाना है कि भाई 23 का डिविजिबिलिटी रूल। अब मुझे ये पता है कि 7 से गुणा होगा और प्लस होगा। अब ये मुझे तो कैसे पता और आपको कैसे पता चलेगा? देखिए हमें जिस भी हमें मान लो 17 का 19 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, तो हम 17 की टेबल लिखेंगे। मान लो 17 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, तो 17 एकम 17 इंटू 2 करेंगे तो बनेगा 34, इंटू 3 करेंगे तो बनेगा 51, इंटू 4 करेंगे तो बनेगा 68। अब क्वेश्चन ये कहां तक लेके जाएं? वहां तक लेके जाएंगे आखिरी में या तो 1 दिख जाए या तो 9 दिख जाए। क्या दिख जाए? इसका मतलब है ये संख्या को, इसके मल्टीपल को हम 10n या तो +1 लिख सकें या 10n इंटू -1 लिख सकें। अब जैसे 51 है, 51 को आप 5 इंटू 10 जमा में 1 लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब मान लो ऐसे ही 19 का चाहिए, मान लो 19 बन जा 19, ये तो लकीली सीधा आ गया। 19 को कैसे लिख सकते हैं आप? 19 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 2 -1। यहाँ पे मैं 10 इंटू 5 कर देता हूं। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे 10n -1, ये जो n है ना, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 17 को आप 5 से गुणा कर रहे थे, वो यहां से आ रहा है। 19 में 2 से कर रहे थे। अब मान लो 23 का डिविजिबिलिटी रूल है, मान लो 2 3 4 6 6 9 चाहिए। इसका रूल बनाने के लिए यूनिट प्लेस लेना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसका तरीका ये, 23 का टेबल पढ़ो। 21 3 जा 23, 1 तो नहीं आया, 9 भी नहीं आया। 23 2 जा 46, ये भी नहीं चलेगा। 23 3 जा 69, ये चल जाएगा। 69 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 10 -1। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 7। तो 7 9 जा 63।
अब क्वेश्चन ये ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस करना पड़ता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। जैसे कि 19 वाले केस में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 17 वाले केस में हमने क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। इस तरीके से कोई भी प्राइम नंबर का आप डिविजिबिलिटी रूल डिराइव खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्पोजिट, जब अगर सारे प्राइम आ गए तो अगर कोई नंबर कॉम्पोजिट है तो हमें उसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, सच दैट बोथ आर को प्राइम। उसके बाद प्राइम नंबर का आ ही गया हमें। तो इस तरीके से हम लगभग सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल खुद से डिवाइड कर सकते हैं। ये कहीं और दिया नहीं हुआ, इसलिए समझ लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। वाह एज सिंपल एज। वीडियो तो है ही, चली रही है। हाँ पीडीएफ, हाँ ओके, मतलब लिखना नहीं है, आप ही कर दो सर पीडीएफ। कोई नहीं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, वो कोई बात नहीं। चलो समझ में आ रहा है। तो वी कैन डू एनी काइंड ऑफ प्राइम नंबर्स का डिविजिबिलिटी एंड आल्सो कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी। ये दोनों मेथड्स हम लगभग सारे कर लेते हैं। अब सुन, अब आ जा उस वाले क्वेश्चन पे, 271 का निकालते हैं बैठ के। आ जा, पूछ रहा था ना ये प्राइम आंसर क्या है, अब तू बता इसका आंसर क्या है। 271 क्या 2 से डिवाइड होएगा? अब मान ले 271 का करना है, 2 से नहीं होगा ना, क्योंकि इवन नहीं। अगर 2 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर 2 से नहीं हो रहा वो 4 से नहीं होगा। तो 2 से भी नहीं होगा, 4 से, 3 से होगा क्या? इसका सम पकड़ ले, 9 और 1 10 नहीं होता। 4 से होगा नहीं, 2 से नहीं हो रहा तो 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं क्योंकि 0 नहीं है, 5 नहीं, 6 से नहीं होगा क्योंकि 2 से भी नहीं हो रहा तो 3 से भी नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा, 7 से करना पड़ेगा, 7 से करके देखते हैं। 7 3 21, 61 नहीं होगा। 8 से करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा तो 8 से नहीं हो रहा। 9 से करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 3 से नहीं हो तो 9 से नहीं होगा। 10 की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि 0 नहीं है। 11 से करके देखना पड़ेगा, 22 नहीं, 11 से। 12 से होगा, 3 से नहीं हो तो 12 से नहीं होगा। 14 से होगा, 2 से नहीं हो रहा तो 14 से नहीं होगा। 15 से करने की जरूरत है, 3 से नहीं हो रहा तो 15 से नहीं होगा। 16 से करने की जरूरत है, 16 से क्या मतलब है? लास्ट 3 डिजिट, 2 ही नहीं हो तो होएगा ही नहीं, तो सब हो गया, क्वेश्चन नहीं है इसका, प्राइम नंबर हो गया, प्रूव। ठीक है, ओके। सो दिस विल टेक केयर ऑफ योर डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक। नहीं, अभी तो डेसिमल कन्वर्जन करा देता हूं मैं आपको। अभी तो 1 ही घंटा पढ़ाया मैंने, तो अभी तो 40-20 मिनट पढ़े हैं, और क्लास भी 20 मिनट लेट शुरू करी थी। इसमें क्वेश्चन में अभी कुछ है ही नहीं, कहाँ से शुरू करोगे क्वेश्चन? अभी पता नहीं, 2 से 4 का भी चक्कर फंसा हुआ है, पता नहीं क्या ही होएगा। एक आधे बच्चों का ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके। चलो मैं आपको बस वो हाँ फ्रैक्शन का कन्वर्जन बता देता हूँ बस, फिर छुट्टी कर दूंगा, 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। मान लेते हैं कि आपके पास 374 डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसका आंसर कितना होगा? आता है सभी को? मान लेते हैं 374 बाय 100 है, तो क्या होगा? अच्छा, मान लेते हैं 3.45 है, इसको फ्रैक्शन में करना है, तो क्या करोगे? 345 बाय 100। मान लेते हैं 34.5 है, इसको कैसे करोगे? 345। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, दिक्कत अब शुरू है। मान लेते हैं 0.3333 है, इसको बोलते हैं 0.3 बार। इसको फ्रैक्शन में करना है अपने को, क्यों? ओके, मैं एक बार मेथड समझा देता हूँ, फिर शॉर्टकट समझा दूंगा, ठीक है? बस आज का इतना ही काम है। मान लेते हैं हमें 0.3 बार करना है, तो मान लेते हैं इसको x मान लिया, x इज इक्वल टू 0.3 बार। x, इसको भी मैं x ही मान सकता हूँ, 0.3 एक डिजिट छोड़ के बार लगा दूं, क्या फर्क पड़ता है?
क्योंकि बार का मतलब है रिपीटिशन। तो हमेशा हमें जितने के ऊपर बार है ना उतने डिजिट छोड़ के एक बार उस नंबर को लिखना होता है। उसके बाद इस डिजिट को एक डिजिट शिफ्ट करना है, तो मैं 10x की वैल्यू ले लेता हूँ, ये बनेगा 3.3 बार, चलेगा। और x की वैल्यू में ओरिजिनल वाली x वैल्यू पकड़ता हूँ 3.3 बार। मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बार के नीचे बार आ जाए। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो बनेगा 9x, और ये बार से बार कट जाएगा, ये बनेगा 3, तो x की वैल्यू बनेगी 3/9। 3/9 होता है 1/3, जिसकी वैल्यू होती है 0.33 बार। मान लेते हैं मेरे पास 0.23 बार है, तो मैंने इसको x मान लिया। अगला वाला मैं बोलूंगा 0.2323 बार। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। क्यों करूंगा, बिकॉज आई वांट टू शिफ्ट द डेसिमल बिफोर दिस। तो 100x की वैल्यू बनेगी 23.2x बार। अब वहां पे x की वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू लूंगा 0.23 बार, माइनस करूंगा तो ये बनेगा 99x इज इक्वल टू 23, ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू बन जाएगी 23 इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है, मान लेते हैं 0.345 बार है, कुछ मत करो 345 लिखो, उसके नीचे 999 लिख दो, आंसर आ जाएगा। जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। इस चीज को बार की जगह ना लिखे कुछ लोग 3.45 यहाँ एक बिंदी लगा देते हैं, यहाँ एक बिंदी लगा देते हैं, इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी 345 बार होता है, इसका मतलब है 999 होता है, ठीक। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारे डिजिट्स के ऊपर बार आए। अगर सारे डिजिट्स के ऊपर बार आ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कुछ नहीं करते, वैल्यू लिखते हैं, डिवाइड बाय 999 कर देते हैं, हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। अब मान लेते हैं ऐसा नहीं हो रहा, कुछ और वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं x की वैल्यू है 0.345 बार है इसके ऊपर, और इसके ऊपर बार नहीं है। वंस अगेन हमारा एजेंडा यही है कि हम एक बार इसको यूं 34545 बार लिखेंगे, उसके बाद हम एक बार इसको शिफ्ट करेंगे, इसके आगे बिंदी लगानी है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000x इज इक्वल टू 345.45 बार। और यहाँ पे वंस अगेन इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको 10x ले लेता हूँ, 10x की वैल्यू बन जाएगी 3.45 बार। हमारा टारगेट हर बार यही होता है कि जो डेसिमल वाला है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाए। अब मैं जब मैं माइनस करूंगा 1000 - 10 बनेगा, तो 990x इज इक्वल टू 345 - 3 बनेगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा लेकिन 3 माइनस करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 345 - 3 डिवाइडेड बाय 990, जो भी इसका फ्रैक्शन बनेगा 343 342, ये आपका आंसर है। तो ये इसका मेथड होता है करने का। अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है। मेथड पहला वाला शॉर्टकट तो ये है कि मान लो 0.343567 बार है, तो मेरा सीधा सीधा आंसर है 3567। प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर बार नहीं है। मान लो 0.35678 बार। इसको मैं कैसे करना है, इसको मैं सिंपल सा करना है। आप क्या करिए, जब आंसर लिखना हो तो आप सारी वैल्यू लिख लीजिए, 35678 लिख लीजिए। इनमें से बार में कौन कौन नहीं जाता है, जो बार में नहीं जाता वो क्या करेगा, दारू पी के उसको कान पकड़ के बाहर निकाल दो। निकाल दिया, डिवाइड। जो लोग बार में जाते हैं फुल मार्क्स 999, जो नहीं जाते इनको 0 आंसर सॉल्व। जैसे ये था 0.345 बार, 345 लिख लो। कौन लोग बार में नहीं जाता, 3 तो माइनस करो, डिवाइड। जो लोग जाते हैं 2 लोग 9 9, और जो नहीं जाता वो 0, यही आंसर है। देखो ठीक है, इससे आपका डायरेक्ट बार का मतलब ये है, क्योंकि जब हम बार पे जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर पीने के बाद क्या बोलते हो आप, तू ही मेरा भाई है। और कितनी बार बोलते हो, जब तक घर नहीं पहुंच जाते हो। यू कीप ऑन सेइंग तू ही मेरा भाई और गाड़ी मैं ही चलाऊंगा, तू ही मेरा भाई और गाड़ी मैं चलाऊंगा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, यही बात होती। क्यों, क्योंकि ऐसे, इसका मतलब ये ऐसे ऐसे मैं ही चलाऊंगा गाड़ी, मैं ही चलाऊंगा, ये देख, इसका ये मतलब है। तो इसको बारी बारी क्या बोलना, बोले मान लेते हैं तो बारी बारी यही बोलेगा, कान में तूने उंगली डाल दी, बोलता रहे बार। इट इज इंडिकेटिंग रिपीटिशन, दैट इज द पर्पस। ठीक है, ठीक है, दिस टेक्स केयर ऑफ योर टुडे सेशन। चलो, हाँ जी, ऑनलाइन, एनी प्रॉब्लम्स एनीबडी?